That's like बयानबाजी। अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल ने एससीओ समिट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे दुश्मन अब एकजुट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकी डॉलर की रिजर्व करेंसी की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। It might be ironic if in the end the protectionist flavor of the day, the tariffs that we're putting on, if it brought together our enemies and ultimately led to the collapse of the reserve currency of the world, that would be ironic that it didn't actually work the way we intended. I don't think we know that yet. Okay. But we do see our enemies and our adversaries coming together, but not just China and Russia and North Korea and Iran. We also see India and others being pushed away. So if you put a 50% tariff on India's goods, India will become closer to China and closer to Russia. So I think really that we ought to think some of these things through before we put exorbitant tariffs on countries that are potentially and have been our friends like India. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास पुतिन के लिए कोई संदेश नहीं है। उन्हें पता है कि मैं कहां खड़ा हूं। ट्रंप ने कहा कि अब फैसला उन्हीं को करना है। हम या तो खुश होंगे या नाराज, और अगर हम नाखुश हुए तो आप देखेंगे कि कदम उठाए जाएंगे। I have no message to President Putin. He knows where I stand, and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we're unhappy about it, you'll see things happen. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर भी अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के मामले में हम पहले ही सेकेंडरी सैंक्शंस लागू कर चुके हैं और दूसरों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। Leaders of Russia and North Korea and China together, the first time the leaders of those three countries have been together to sort of show solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद सरकार ने आम जनता और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजमर्रा के सामान और बड़े प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम करने का ऐलान किया। जस्ट इंडिकेट करते हुए आई विल स्टॉप माय इनपुट। इफ रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज एनीथिंग मोर ही कैन ऐड। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches,
All TVs now at 18. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी सरकार के समय महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। मोदी ने कहा कि आरजेडी जैसी पार्टियां कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं, बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री से जुड़े डेलीगेट्स और लीडर्स को उद्योग जगत से रिसर्च और इनोवेशन पर भी निवेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया एक लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है।